are going to start chapter Understanding Quadrilaterals of Standard 8. This is the chapter of geometry and very useful and very important chapter. If you are understanding this properly, you will not get any kind of problems, confusion in further classes. So let's start. Starting part of this chapter is polygon. Polygon actually a closed figure with a straight line. Any polygon like this. This kind of closed figure, not this kind. This is also closed, but this line you are observing is not straight. But here all the sides are straight. And so this is polygon, but this is not polygon. Polygon can be of different types, like triangle having 3 sides, quadrilateral having 4 sides, pentagon having 5 sides, hexagon having 6 sides, and so on. So polygon, हमने सिर्फ यही समझना है कि पॉलीगॉन जिसके जो क्लोज फिगर और जिसके स्ट्रेट लाइन से क्लोज्ड हो, जो स्ट्रेट लाइन से क्लोज्ड है वह पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में जब हम लोग पॉलीगॉन पढ़ते हैं तो इसमें जो आपको टाइप ऑफ पॉलीगॉन की बात पहले मैं करता हूं, वो आता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, या हम क्वाड्रिलेटरल पर जाते हैं। ट्राइंगल तो आप जानते ही हो, ट्राइंगल हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर भी पहले पढ़ा हुआ है। ट्राइंगल having 3 sides, 3 angles, 3 exterior angles, okay, and different type of triangles के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले triangles होते हैं according to the measurement of angles, right angle triangle, obtuse angle triangle, acute angle triangle, okay, and according to the measurement of their sides we have 3 types of triangles. They are scalene triangle having no sides equal, equilateral isosceles triangle having 2 sides equal, and equilateral triangle having all 3 sides equal. तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। In this chapter you will study from quadrilateral. Quadrilateral इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी भी आप जानते हो बेटा, 180 डिग्री। 180 डिग्री is the sum of all 3 angles of a triangle. अब मैं बात करूंगा क्वाड्रिलेटरल की। पहले हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव की भी बात करेंगे अभी, बट पहले क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, बिकॉज इस चैप्टर में हमने मेनली क्वाड्रिलेटरल को पढ़ना। क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स भी होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। ये अभी जो हमने ड्रॉ किया ये 1 2 3 4 5, सो दिस इज पेंटागन। अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की। सी दिस इज क्वाड्रिलेटरल, ए बी C D is a quadrilateral having 4 sides, AB, BC, CD and AD. इसको हम बोलते हैं एक्चुअली कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो आप बोलोगे कि सर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अगर हम इसको बोलते हैं तो हम लोग तो कभी बोलते ही नहीं है। कभी भी हम जब बात करते हैं ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल, yeah, what kind of quadrilateral is this? Never we say what kind of convex quadrilateral is this and draw a convex quadrilateral. Never we say. Why? तो आपका इसका रीजन आपको अभी तुरंत मिल जाएगा जब मैं आपको ये सब आगे प्रोसेस करते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए बेटा, so here first I am drawing a concave quadrilateral. See, this is a concave quadrilateral. Concave, convex और concave जो वर्ड है नॉर्मली आपने साइंस में पढ़ा हुआ होगा, जब मिरर पर होगे या लेंस पर होगे। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव होता है जो इनसाइड इंडल्ज होता है, इस तरह का होता है, जिसमें इधर से रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, ये कॉनकेव हुआ। और कॉन्वेक्स होता है जिसमें इस तरफ से रिफ्लेक्स, ये बाहर की ओर निकला हुआ है और ये अंदर की ओर दबा हुआ है।
तो ये कॉन्वेक्स और ये ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। सिमिलरली हियर ये जो देख रहे हैं ये वाला साइड ऐसे अंदर की ओर आ गया है। सिंपल लॉजिक में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो इट इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम मैं करता हूं PQRS। PQRS is a concave quadrilateral here. Then what kind of difference we are feeling here? Observing what kind of difference? See, AC and BD are diagonal, and both the diagonals intersecting each other at a point. The point is in interior of the quadrilateral. दोनों डायगोनल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सपोज इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं O. Both the diagonals intersecting each other at point O, and point O is in interior of the quadrilateral. But here we draw two diagonals QS and PR. What you are observing? Both the diagonals do not intersect each other. And this is the property of concave quadrilateral. This is the property of convex quadrilateral. Means in convex quadrilateral, both the diagonals intersect each other at a point which is in interior of the quadrilateral, whereas in concave quadrilateral, both the diagonals do not intersect each other. Okay? So this is the first difference between convex and concave quadrilateral. Now, second difference between these two quadrilateral is, see here, this angle, this and this. No angle is bigger than 180. कोई भी एंगल इसमें से 180 से बड़ा नहीं है। आप मेजर करके चेक कर सकते हो अगर मेजर करना। बट हियर this angle is lesser than 180. This also, but this is not. This angle is bigger than 180, which is actually reflex angle. So ये वाला एंगल जो है बेटा वो reflex एंगल है, और यही second difference between convex and concave quadrilateral होता है। In convex quadrilateral, each angle is lesser than 180, whereas in concave quadrilateral, one angle is reflex, which is bigger than 180. Reflex angle वो होता है बेटा जो bigger than 180 और smaller than 360 होता है। तो ये एक होता है। तो इस तरह हमने 8 स्टैंडर्ड में या किसी भी स्टैंडर्ड में कॉनकेव के बारे में इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा कॉनकेव के बारे में पढ़ना नहीं है हमें। और यही रीजन है कि इसको चूंकि पढ़ना नहीं है हमें सिलेबस में या मैथ्स में, इसीलिए वी नेवर से कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हम डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल बोलने का मतलब हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज नो कॉनकेव quadrilateral we have to study in mathematics. Other than this, how much we study, that is enough. जितना हमने पढ़ा अभी वही इनफ है, उससे ज्यादा हमें पढ़ना नहीं। तो ये भी आपने समझ लिया होगा। अब इसको मैं रख कर देता हूं क्योंकि इसकी नीड नहीं है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट थिंग इज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन जो होते हैं वो रेगुलर कब होते हैं और इरेगुलर कब होते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब हुआ all sides equal and all angles equal. Means a polygon having all sides equal and all angles equal is known as regular polygon. ये हो गया पॉलीगॉन रेगुलर। जबकि इरेगुलर में सभी साइड इक्वल नहीं होंगे, सभी एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। तो नॉर्मली हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो ट्राइंगल इरेगुलर हो सकते हैं, रेगुलर भी हो सकते हैं। रेगुलर जो ट्राइंगल होता है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं एंड सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और अभी आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन,
a triangle is regular, then what is the measurement of each angle? Please say, what is the measurement of each angle of a triangle which is a regular triangle? Okay, ट्राई कीजिएगा आंसर फाइंड आउट करने का बेटा। अब आता हूं मैं क्वाड्रिलेटरल पर, चूंकि इस चैप्टर में हमें क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ना। सो क्वाड्रिलेटरल भी रेगुलर होते हैं। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं आपको मैं ये बता रहा हूं। आपने डायग्राम को देख के, ये रफ हैंड से बनाया हुआ डायग्राम है तो परफेक्ट तो नहीं है, बट देख के कुछ आइडिया मिल गया होगा। ये एक स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर हैविंग ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। सो ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हो गया। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। सपोज एनीबॉडी आस्किंग यू व्हाट इज रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, या which quadrilateral is regular quadrilateral, we tell square, because all angles equal, all sides equal. अब पॉलीगॉन में आपको पूछा जा सकता है बेटा कि किसी भी पॉलीगॉन का कितने साइड हैं और उसके एंगल्स कितने हैं, कितने डिग्री का एंगल होगा उसका। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल of a polygon having this many sides, like 5 sides, like 6 sides, like 7 sides, like 8 sides, like 10 sides, 20 sides, ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन, और वो भी आपने करना होगा, इसी चैप्टर में होगा वो। तो अगर 4 साइड्स, इसका एक तरीका है हमारे पास, दोनों में बता देता हूं। अब आपने क्या करना है, इसको ट्राइंगल के फॉर्म में दे देना, दिस वन, हाउ इन ट्राइंगल्स वी आर गेटिंग 1 2 3, and we know sum of all angles of a triangle is 180 degree, so this is 180, this is 180, this is 180, or answer 180 plus 180 plus 180 is 540 degree. You will get sum of all angles of this. How many sides here? 1 2 3 4 5. So a pentagon having 5 sides, sum of all angles of a pentagon is 540. ये हो गया। इस तरह से एक तरीका तो ये मैंने बताया, दिस इज लेमन मेथड by which you can find out what is the sum of all angles of the given polygon. But here there is some method, technical method, mathematical method by which you can find out this, and this is sum of all angles of a polygon is equals to n minus 2 into 180. This is a method we have by which we can find out the sum of all angles of a polygon. N is here number of sides. N equals to number of sides of polygon. ठीक है बेटा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि कोई पॉलीगॉन है जिसमें 5 साइड्स है, मतलब पेंटागन है, तो उसके आप एंगल्स बताइए कितने डिग्री का उसमें एंगल होगा टोटल। तो n की जगह आपने 5 डाल देना है, -2 इंटू 180, दैट इज 3 इंटू 180 एंड दैट इज 540, जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था उस मेथड से, ट्रायंगल फॉर्म करके हमने फाइंड किया था। हमारा यहां भी वही आ रहा। तो एक ये क्वेश्चन है जो कई बार आपसे पूछा जाएगा, या कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि सम दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि उसमें कितने साइड्स हैं ये फाइंड करो, या उसमें कितने एंगल्स हैं ये फाइंड करो। सेम फॉर्मूला यू विल अप्लाई, बट इन दैट वेरी केस यू हैव टू फाइंड आउट n इक्वल्स टू व्हाट। वहां तुमने n फाइंड करना होगा और ये लेफ्ट साइड में वो नंबर दिया रहेगा जो तुम्हारा आंसर होना चाहिए। मींस व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन would be here, and you will get the value of n. Same formula, using same formula you can find out. Okay, एक और भी बात आती है इसमें कि what is the measurement of each angle. each angle मतलब अलग एक एक एंगल का नाम बताओ, लेकिन तब ये रहेगा
कि यह रेगुलर पॉलीगॉन है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन के ही सभी एंगल इक्वल होंगे ना। तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके एक एंगल का मेजरमेंट आप बताइए। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपॉन एन कर देंगे, अपॉन एन, ठीक है। इसी में अपॉन एन, ये सब में अपॉन एन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या था, ये पेंटागन था, 5 साइड्स, तो हमें अपॉन 5 करना होगा। यहाँ अपॉन 5, हियर आल्सो अपॉन 5 एंड हियर आल्सो अपॉन 5 एंड इट वुड बी 108। इसका मतलब हुआ कि पेंटागन के ईच साइड का मेजरमेंट 108 डिग्री होता है। ओके, इसी तरह अब इस ऐसा हमने बताया, अब इसमें जो भी आए, वो पेंटागन आए, वो हेक्सागन आए, वो डेकागन आए, वो ऑक्टागन, जो भी आए उसमें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता देना चाहता हूं बेटा, आपने ट्राइंगल के केस में एक्सटीरियर एंगल पढ़ा हुआ, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। आप ये याद रखिए बेटा कि नॉट ओनली ट्राइंगल but also quadrilateral, but also pentagon, but also any kind of polygon, सभी टाइप के पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, हमेशा याद रखिएगा। सभी टाइप के पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा आएगा कि इफ अ पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स, 6 साइड है तो 6 एंगल भी होंगे, और 6 एंगल होंगे तो 6 एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। तो आप उसके ईच इंटीरियर एंगल का या ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बताओ। रेगुलर पॉलीगॉन इज रेगुलर हैविंग 6 साइड्स, तो देखो बेटा साइड्स है 6 और वह रेगुलर भी है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके ईच एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, चाहे इंटीरियर चाहे एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा वो देखिए, आपने डायरेक्टली क्या करना है, 6 साइड्स है तो 6 एक्सटीरियर एंगल्स है, और टोटल मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री। 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर 60 है। मींस ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होगी। सेकेंड थिंग, इफ योर क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, व्हाट यू डू, देख लीजिए यहां ये ट्राइंगल का केस है, सारे इसी तरह के केस होते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, दोनों के बीच जो रिलेशन होता है बेटा, बोथ आर लीनियर पेयर एंगल्स, एंड इफ दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर एंगल, if you will subtract one exterior angle from 180, you will get the interior angle, and if you will subtract interior angle from 180, you will get the exterior angle. So here we know the exterior angle, which is 60 degree. So after subtracting from 180, that is 120 degrees. So 120 degree is the measurement of each interior angle of a polygon having 6 sides. समझ में आ गया होगा, आई होप। अगले वीडियो में हम और कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट कि एवरीथिंग वुड बी वेरी इजी इन दिस चैप्टर। थैंक यू।